Hello, very good morning to you all. Today we will start chapter 16, parallelograms. We have started polygons, quadrilaterals, and solved some problems related to polygons. And I will solve some problems related to quadrilaterals in the next video. And today we are going to start parallelograms. But I would like to give advice to you all, and that is, before watching this video, you all watch the class 7 video, parallel lines, properties of parallel lines of class 7, to just remember the some theorems and relations when parallel lines are cut via transversal, etc. Please watch class 7 properties of parallel lines before watching this video. Okay, so let us start parallelograms. I have noted some words. A special type of quadrilaterals. These are parallelograms, rhombus, rectangle, square, trapezium, and isosceles trapezium. Let us define this one by one. इससे पहले क्लास 7 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस जरूर वॉच कीजिए और उसके बाद इसको वॉच कीजिए तो ज्यादा फायदा होगा. तो फर्स्ट है आपका स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम्स. व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? इट इज a quadrilateral having both pairs of opposite sides are parallel, then it is called a parallelogram. अगर किसी quadrilateral का दोनों पेयर, अपोजिट साइड्स का दोनों पेयर अगर पैरेलल हो तो कहते हैं कि ये क्या है? पैरेललोग्राम है. राइट? Yes, here ABCD is a quadrilateral and AB parallel CD and AD parallel BC. We will study the properties related to parallel lines. Further, a quadrilateral having both pairs of opposite sides are parallel is called a parallelogram. Quadrilateral जिसका both pair opposite sides, that is दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होता है क्वाड्रिलेटरल में. एक पेयर आपका ये है AB एंड BC, दूसरा है AD एंड BC. तो दोनों आपका पैरेलल है. दिस एरो इंडिकेट्स दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस डबल एरो लाइन indicating this double arrow indicates that this line is parallel to this. And the next is rhombus. हम लोग rhombus को पैरेललोग्राम के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं या क्वाड्रिलेटरल के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं. So let us define this regarding both the respects. तो rhombus आपका a quadrilateral is called a rhombus if its both opposite sides are parallel and all sides are equal. अगर क्वाड्रिलेटरल के रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन करते हैं तो क्या होगा rhombus? A quadrilateral if its both sides, opposite sides are parallel and all sides are equal, then it is called a rhombus. और अगर इसको पैरेललोग्राम के रिगार्डिंग अगर डिफाइन करते हैं तो क्या होगा? A parallelogram in which all sides are equal, then it is called a rhombus. rhombus एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका सारा साइड, ऑल साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है. Here we can say that all rhombus are parallelograms, but all parallelograms are not rhombus. जितना rhombus है सब आपका पैरेललोग्राम है, लेकिन जितना पैरेललोग्राम है all पैरेललोग्राम आपका rhombus नहीं. The next is rectangle. What is a rectangle? We again define a rectangle regarding quadrilateral and or parallelograms. A parallelogram is called a rectangle. A parallelogram is called a rectangle if each angle is 90 degree. अगर किसी पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 डिग्री है तो क्या हो गया आपका? वो ऐसे एक भी एंगल 90 डिग्री होगा तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा. A parallelogram is called a rectangle if its
वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल भी अगर आपका 90 होगा तो कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट से सारा एंगल्स आपका 90 हो जाएगा। और अगर क्वाड्रिलेटरल के रिगार्डिंग अगर आप इसको करते हैं, जिसमें थर्ड कंडीशन भी दो कंडीशन अप्लाइड होगा। अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल इफ इट्स both pairs of opposite sides are parallel and each angle is 90 degree. And the next is square. ABCD is called a square. इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल सबके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। कंडीशन बढ़ता जाएगा। जैसे अगर क्वाड्रिलेटरल के रिगार्डिंग डिफाइन करते हैं तो क्या होगा, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, देन दिस इज द स्क्वायर। अगर इसको रोम्बस, पैरेललोग्राम के रिगार्डिंग अगर आप इसको डिफाइन करते हैं तो क्या होगा, a parallelogram in which all sides are equal and each angle is 90 degree. अगर आप इसको रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग अगर आप रिगार्डिंग अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या होगा, a rectangle in which all sides are equal. In a rectangle, if it's all sides are equal, then it is called a square. स्क्वायर में बेसिकली आपका क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, ऑल साइड्स इक्वल होगा और ईच एंगल 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, a quadrilateral is said to be trapezium if it has one pair of opposite sides are parallel. एक क्वाड्रिलेटरल को, ऐसा क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं जिसका एक पेयर पैरेलल हो, तो क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। ट्रेपेजियम नेक्स्ट एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का नॉन पैरेलल, जैसे एक पेयर पैरेलल होगा तो जो दूसरा पेयर है ट्रेपेजियम का आपका नॉन पैरेलल होगा। तो अगर ट्रेपेजियम का नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है तो उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। Now we will prove some theorem. Let us move further, move ahead. The one type of quadrilateral is remaining, kite. What is a kite? Kite, a quadrilateral in which a pair of equal adjacent sides but unequal opposite sides. That is, क्वाड्रिलेटरल को काइट कहते हैं अगर इसका पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, यहाँ पे देख सकते हैं दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स AD एंड DC एंड AB एंड CB। आपका दो एडजेसेंट साइड्स AD एंड CD इक्वल है और AB एंड BC इक्वल है, लेकिन अपोजिट साइड इसका अनइक्वल होता है, तो इसको काइट कहते हैं। नाउ वी विल मूव अहेड। Properties of a parallelogram. The opposite sides are equal. In a parallelogram, opposite sides are equal, opposite angles are equal, and diagonal bisects each other. अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है और डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। लेट अस प्रूव दिस। दिस इज अ थ्योरम एंड वी कैन प्रूव इट। थ्योरम है और इसको प्रूव कर सकते हैं। Theorem, what is theorem? Theorem is the fundamental fact of geometry that requires proof. Geometry का fundamental fact है जिसको proof की आवश्यकता होती है, that is it can be proved. और आपका दूसरा fundamental fact है, that is नहीं दूसरा actually पहला, axioms. Axiom is the fundamental fact of geometry that we grant ourselves. We don't require any proof to do so. उसको proof की जरूरत नहीं होती है, वो self proved होता है। तो ये theorem है और इसको हम लोग prove कर सकते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया याद रखना है, दैट यू ऑल हैव स्टडी कर चुके हैं, आप लोग इसको स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। जैसे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल, RHS
राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज साइड एटसेट्रा, यहाँ इसकी जरूरत होगी, इसके लिए प्रायर नॉलेज है। तो थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? द टर्म कॉन्ग्रुएंसी मीन्स ऑल पार्ट्स इक्वल। कॉन्ग्रुएंट मीन्स ऑल पार्ट्स इक्वल। कोई दो फिगर का अगर ऑल पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होता है आपका, तो व्हेन वी सुपरपोज वन टू अनदर इट कवर्स एक्यूरेटली। अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो एक को जब दूसरे के ऊपर पुट करेंगे तो वो सुपर पोजिशन में आ जाता है, दूसरे को एग्जैक्टली कवर करता है, तो कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट का करस्पॉन्डिंग पार्ट थोड़ा सा समझते हैं, इसकी जरूरत होगी। सपोज कीजिए आपका दो ट्रायंगल है, सपोज वी हैव टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट होगा अगर इसका एबी, दोनों का करस्पॉन्डिंग पार्ट अगर इक्वल होगा। जैसे इसका एबी डी के इक्वल है, बीसी अगर ईएफ के इक्वल है, एसी डीएफ के इक्वल है, तो दोनों फिगर कह सकते हैं क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये कॉन्ग्रुएंसी का आपका सिंबल है। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पार्ट का इंपॉर्टेंस है। देखिए अगर ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीएफ के अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम सिर्फ फिगर से नहीं, हम इसके नेम से पता कर लेंगे। जैसे ट्रायंगल का पार्ट होता है एंगल, वर्टेक्स एंड साइड्स, तो करस्पॉन्डिंग दूसरे के किसके इक्वल होगा। देखिए एबीसी ट्रायंगल एबीसी, इफ ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीएफ मींस आपका वर्टेक्स ए डी के करस्पॉन्डिंग है, बी ई के करस्पॉन्डिंग है और सी एफ के करस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली ट्रायंगल एबीसी का एंगल ए एंगल डी के करस्पॉन्डिंग होगा और एंगल बी एंगल ई के और एंगल सी एंगल एफ के करस्पॉन्डिंग होगा। और उसी तरह से अगर साइड देखें यार, करस्पॉन्डिंग मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट जो भी होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, तो ये आपका इक्वल होता है। और अगर साइड की बात करें, देखिए ए बी साइड करस्पॉन्डिंग होगा डी के, बी सी करस्पॉन्डिंग होगा ई एफ के और ए बी साइड करस्पॉन्डिंग होगा आपका डी एफ के। अब आप फिगर में देख लीजिए, ए बी करस्पॉन्ड्स टू डी है, ए बी इक्वल टू डी, बी सी करस्पॉन्ड्स टू ई एफ, यस बी सी करस्पॉन्ड्स टू ई एफ एंड ए सी करस्पॉन्ड्स टू डी एफ। और इसी में अगर ये चेंज कर दें, नेमिंग में अगर हम चेंज कर देते हैं कि अगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ई एफ डी के, तो देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट इसका चेंज हो गया पहले से, अब ये नहीं चलेगा यहाँ पे। इट मीन्स इसको एंगल ए दैट इज वर्टेक्स ए, अब आपका ये जो वर्टेक्स है वो ई के करस्पॉन्डिंग हो गया, सिर्फ एक ही पे इसको करेंगे कैटेगराइज। और एंगल बी आपका एफ के, एंगल बी जो है एफ के करस्पॉन्डिंग हो गया और एंगल सी हो जाएगा डी के करस्पॉन्डिंग, डी के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। और उसी तरह से ट्रायंगल एबीसी का ए बी करस्पॉन्डिंग हो जाएगा ई एफ डी के ई एफ के, जो आपका पहले ए बी अब इसका ई एफ के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। सो केयर शुड बी टेकन, नेम जो हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर का यूज करेंगे वो अकॉर्डिंगली होना चाहिए, जैसे तैसे नहीं होना चाहिए। नाम से ही आप इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ABCD। कंस्ट्रक्शन कीजिए, एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए, अपोजिट साइड जो इसका ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ऐसे। हियर व्हाट इज गिवन, ज्योमेट्री में तीन चीज, एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, थ्री थिंग्स वी मस्ट रिमेंबर, व्हाट इज गिवन, व्हाट हैज बीन गिवन, व्हाट इज टू प्रूव एंड थर्ड प्रोसेस, हाउ टू रीच देयर। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, पैरेलल लाइंस एंड GM पैरेललोग्राम। प्रूव क्या करना है, तो प्रूव यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी लिख चुके हैं, यही सब प्रूव करना है।
नेक्स्ट आपका है प्रोसेस, लेकिन प्रोसेस से पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किए हैं, तो अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन को भी लिखना पड़ेगा। क्या किए हैं? ज्वाइन एसी, दो चीज हो गया। थर्ड ऑप्शनल है, ये केस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेते हैं कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन लिए। नाउ प्रोसेस और प्रूफ, कुछ भी लिखिए। इसको एंगल को यहाँ पे जो ज्वाइन किए हैं, थोड़ा सा इसको नेमिंग कर लेते हैं, एंगल 1 2 3 4, थोड़ा सा इजी हो जाएगा प्रोसेस करना, नहीं तो एंगल का थोड़ा लंबा नाम यूज करना पड़ेगा। अपोजिट साइड्स इक्वल और अपोजिट एंगल इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दो ट्रायंगल जब डायगोनल ज्वाइन किए हैं तो एडीसी और एबीसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए मैथ्स कहा जाता है कि मैथ्स 50% या 70% माइंड में प्रूव होता है। यहाँ पे देखिए नाम कैसे लिए, ट्रायंगल एबीसी और सीडीए, इसलिए हम ट्रायंगल एबीसी को सीडीए के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। और उसमें आपका जैसा कि देख रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी का जो ए होगा एंगल या वर्टेक्स, वो सीडीए के एंगल सी या वर्टेक्स सी के करस्पॉन्डिंग होगा। देखिए कैसे होता है इस दोनों ट्रायंगल में। देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, हाउ? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ए बी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 1 और एंगल 3 आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ए बी पैरेलल सी डी है और ए सी इसके लिए ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करता है। ये आपका हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। यहां पे रीजन देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट आपका एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, सेम रीजन। अब देखिए वी हैव गिवन एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, देखिए अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एडी पैरेलल है बीसी के और इसके लिए एसी ट्रांसवर्सल है, तो आपका 2 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर कंफ्यूज कर रहे हैं तो जस्ट हाइड द रेस्ट ऑफ द साइड। देखिए ये दोनों अगर आपका पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगा, तो ये और ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। इस तरह से फिगर आप रफ कर सकते हैं समझने के लिए अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। और नेक्स्ट आपका AC इक्वल टू CA, AC इक्वल टू CA, यहां पे सेम रीजन दीजिए, डिक्टो मार्क। AC इक्वल टू CA क्या है, कॉमन है आपका दोनों ट्रायंगल में। तब देखिए एक एंगल, एक पेयर ऑफ एंगल इक्वल हुआ, कॉमन साइड है और दूसरा पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल है, तो आपका एंगल साइड एंगल, दैट इज ऐसे क्या कहता है कन्वेंसी क्राइटेरिया। ऐसे कन्वेंसी क्राइटेरिया क्या कहता है, अगर दो ट्रायंगल का दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, अगर दो एंगल एंड इंक्लूडेड साइड मींस जो दो एंगल लेंगे उसी से इन्वॉल्व साइड भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देख लीजिए दोनों ट्रायंगल में आपका ट्रायंगल एबीसी और सीडी, ए में दो एंगल, एंगल 1 और एंगल 4, दूसरे ट्रायंगल एंगल 3 और एंगल 2 के इक्वल है, और दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड है आपका एसी। दोनों एंगल का, एंगल और एंगल 4 में भी एसी इन्वॉल्व है और एंगल 2 और एंगल 3 में भी एसी इन्वॉल्व है। तो ये आपका ऐसे देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से क्या हो गया आपका, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। Therefore, triangle ABC congruent to triangle CDA। कैसे क्राइटेरिया जरूर लिखेंगे, बाय ASA क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। तब दो ट्रायंगल आपका जब इक्वल हो गया तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो पहले डिस्कस कर चुके हैं इक्वल होगा। आपका देखिए ABC CD A के
कंग्रुएंट है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया आपका, सी डी हो गया। अब नाम से निकालिए, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, नाम भी अकॉर्डिंगली लिए थे। कैसे, बाय CPCT, that is congruent part of corresponding part of congruent triangles. CPCT stands for corresponding part of congruent triangles, and BC equal to DA। ये आपका फर्स्ट प्रूव हो गया। और नेक्स्ट देखिए, एंगल बी corresponds to एंगल डी, यहां भी निकाल सकते हैं, एंगल बी corresponds to एंगल डी, नेम ही वैसे लिए थे, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, सॉरी एंगल्स इक्वल कर चुके हैं। अब दूसरा देखिए, इसी से करते हैं, अब इसको रब करते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आपका, वो भी यहाँ पे कर चुके थे, उसको आप इक्वेशन सपोज कर सकते हैं। और एंगल 4 इक्वल टू, इसको आप इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए, जो यहाँ पे प्रीवियसली प्रूव कर चुके हैं। और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। अब देखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 है। इसको ऐसे लिखिए, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, चेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। नाउ ऐड इक्वेशन 1 प्लस एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो एलएचएस और एलएचएस को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए, इक्वेशन 1 का एलएचएस है एंगल 1 और इक्वेशन 2 का एलएचएस है एंगल 2, इक्वल टू इक्वेशन 1 का आरएचएस एंगल 3 और इक्वेशन 2 का आरएचएस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो गया यहाँ पे आपका, एंगल ए। एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो गया, एंगल सी। तो दूसरा भी हम लोग प्रूव कर लिए। एक एंगल बी इक्वल टू एंगल डी यहाँ कर चुके थे, दूसरा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। या यहाँ पे आप सेम सिमेट्री में ऐसा किया जाता है, अगर हमको एक पार्ट प्रूव कर चुके हैं और दूसरे पार्ट को प्रूव करने के लिए अगर सेम प्रोसेस यूज करना पड़ता है तो हम लोग सिमिलरली रेफर कर देते हैं। यहाँ पे सिमिलरली कैसे करते हैं, अनदर मेथड, बीसी को ज्वाइन करते, उसके बाद देते ज्वाइन बीडी, सॉरी बीडी नॉट बीसी, दिस इज बीसी। बीडी को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद फिर ट्रायंगल डीएबी और ट्रायंगल सी बीसी डी को कंग्रुएंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसी से कर दिए। नेक्स्ट वी हैव डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसके लिए फिर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। बीडी को ज्वाइन कीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पे 1 पे मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओडी को कंग्रुएंट कर देंगे थर्ड के लिए। नाउ इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, सीओडी ए बी वाले एंगल से लीजिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसको नाम दे दीजिए 5 और इसको देते हैं 6। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और नेक्स्ट ए बी इक्वल टू सी डी, इसमें दीजिए प्रूफ एवं। हम लोग अभी प्रूव कर चुके हैं, अभी प्रूव कर चुके हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो देखिए क्या हो गया, अगेन एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल एओबी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी, कैसे, बाय एएसए कंग्रुएंसी क्राइटेरिया। और फिर कोरस्पोंडिंग पार्ट ले लीजिए। नाउ एओ इक्वल टू सीओ, एओ इक्वल टू सीओ। सिमिलरली आपका एओ इक्वल टू सीओ हो गया। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओबी में। सिमिलरली एग्जैक्ट
फॉलोइंग द सेम प्रोसेस, BO इक्वल टू DO। तो क्या देख रहे हैं, AO इक्वल टू CO हो गया और DO इक्वल टू BO हो गया, दैट इज दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। तो थर्ड आपका हो गया डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सिमिलरली BO इक्वल टू BO। इफ अगर यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करना हो तो हम लोग सिमिलरली रेफर करते हैं, हेंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। प्रूव। अब 1 मिनट और, वन थिंग इज मोर, यहाँ पे क्या था हम लोग को प्रूव करना, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite angles are equal and diagonals bisect each other and its converse is also true। converse means इसका उल्टा ट्रू होगा, that is अभी हम लोग क्या किए हैं, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, इसका कन्वर्स मीन्स अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसका अपोजिट साइड्स इक्वल है देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा। दूसरा, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसका कन्वर्स क्या होगा, कोई क्वाड्रिलेटरल है, इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ opposite angles are equal then it is a parallelogram। and third है आपका in a parallelogram diagonal bisects each other, इसका कन्वर्स क्या होगा, in a if in a quadrilateral diagonal bisect each other then it is a parallelogram, its converse is also true। and in the next video we will discuss the diagonals property of rhombus, diagonals property of square and diagonals property of rectangle। and again before watching this video watch the class 7 parallel lines, properties of parallel lines। thank you।